Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum 7th class. Today we are going to start our chapter number 3, which is reproduction in plants. So actually all living things reproduce. Now what is reproduction? Reproduction is a process by which organisms produce more organisms like themselves. It is a basic characteristic of living things. Flowering plants mostly reproduce through flowers. One major process in the reproduction of flowering plants is pollination. Pollination helps to produce new seeds that grow into the new plant. A flower's colorful petals attract insects that pollinate the flower. Pollen grains stick to their bodies, thus they carry the pollen grains to the part of the flower that makes seeds. So today we will discuss about pollination and types of pollination. Now, what is pollination? The transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of the carpel is known as pollination. यानी पोलन ग्रेन्स का एक फ्लावर के एंथर से कार्पल के स्टिग्मा तक जाना क्या कहलाता है? पोलिनेशन कहलाता है. And with the help of this process, the male sex cells reaches the female sex cell. Sex cells are also called gametes. Wind, insects, animals and water are the agents for pollination in different plants. यानी agents of pollination क्या होंगे जिनके थ्रू pollination होती है? Means हवा के थ्रू, सेक्स के थ्रू, जानवरों और पानी के जरिए से भी pollination होती है. Most flowers have 4 main parts: petals, sepals, carpels and stamens. So actually green sepals protect the flower from the sun and the colored petals attract the insects and other animals for the pollination of flower. Stamens are male parts of the flower and carpels are female parts of a flower. So there is difference between the structure of stamen and structure of carpel. Stamens are the male parts of a flower. Each stamen has a filament and an anther. Pollen grains are produced in anthers. Carpels are the female parts of a flower. Each carpel has a sticky stigma, a style and an ovary. Ovules are present in the ovary. Now we will discuss about kinds of pollination. There are two kinds of pollination: self-pollination and cross-pollination. Self-pollination is actually the transfer of pollen grains from the anther to the stigma of the same flower or another flower on the same plant is called self-pollination. यानी pollen grains का same flower पर ट्रांसफर होना या फिर इसी प्लांट के किसी और फ्लावर पर ट्रांसफर होना क्या कहलाता है? सेल्फ पोलिनेशन कहलाता है. और इस पिक्चर में सेम फ्लावर पर पोलिनेशन हो रही है, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेल्फ पोलिनेशन. पी, टोमेटो, राइस प्लांट्स आर सेल्फ पोलिनेटेड प्लांट्स. नाउ व्हाट इज क्रॉस पोलिनेशन? The transfer of pollen grains from the anther of a flower to the stigma of a flower on another plant of the same kind is called cross pollination. यानी क्रॉस पोलिनेशन के केस में क्या होगा कि जो पोलन ग्रेन्स हैं वो सेम काइंड के प्लांट में एक फ्लावर से दूसरे तक ट्रांसफर होंगे. यानी इस केस में दोनों फ्लावर सेपरेट प्लांट्स पर हैं लेकिन उनकी काइंड क्या है? उनकी काइंड सेम होगी. फॉर एग्जाम्पल poplar, willow, apple and papaya trees are cross-pollinated plants. There is actually difference between self-pollination and cross-pollination. Self-pollination के केस में क्या होगा कि जो दोनों फ्लावर्स हैं वो सेम प्लांट पर होंगे या फिर एक फ्लावर जो है उसी में सेल्फ पोलिनेशन हो जाएगी, लेकिन जो क्रॉस पोलिनेशन है उसके केस में जो फ्लावर्स हैं वो सेपरेट प्लांट्स पर होंगे और प्लांट की जो काइंड है वो क्या होगी? सेम होगी. सो क्रॉस पोलिनेशन प्रोड्यूसेस स्ट्रॉन्गर प्लांट्स एज कंपेयर टू सेल्फ पोलिनेशन. सम फ्लावर्स हैव स्पेशल फीचर्स दैट फेवर क्रॉस पोलिनेशन, दैट इज colored petals, long and sticky stigmas,
नेक्टर एंड फ्रेग्रेंस। सो यहाँ पर कुछ हाईलाइट पॉइंट्स हैं आपके, और यहाँ पर आपका लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 भी कंप्लीट हो रहा है। योर लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 इज राइट अ डिटेल्ड नोट ऑन पॉलिनेशन इन प्लांट्स। सो यहाँ से आपका जो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है वो स्टार्ट हो रहा है इस पॉइंट से, और इसमें आप फर्स्टली पॉलिनेशन की हेडिंग देकर आप पॉलिनेशन की डेफिनेशन लिखेंगे। फिर उसके बाद आप गैमेट्स की हेडिंग देकर आप इसमें गैमेट्स की एक्सप्लेनेशन दोगे। फिर उसके बाद एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन की हेडिंग दे सकते हैं आप यहाँ पर, और एजेंट्स के बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा इसमें आपने डायग्राम बनानी है। डायग्राम यहाँ से भी आप बना सकते हो, उसके अलावा एक्सरसाइज में भी डायग्राम दी हुई है, वहाँ पर ज़रा क्लियर स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, तो वहाँ से भी आप डायग्राम को बना सकते हैं। सो कार्पल और स्टेमन की जो डायग्राम्स हैं वो सेपरेटली आपने इस तरह से बनानी है। साथ फ्लावर की डायग्राम आप एक्सरसाइज वाली भी बना सकते हो, लेकिन ये वाली भी बना सकते हैं आप लोग डायग्राम। सो कार्पल की लिंक के साथ जो डायग्राम है वो सेपरेट बनेगी, और स्टेमन की भी सेपरेट बनेगी, जैसे यहाँ पर आपको नज़र आ रही है। सो नेक्स्ट आप काइंड्स ऑफ पॉलिनेशन की हेडिंग देंगे और फर्स्ट लाइन लिख देंगे। फिर उसके बाद आप सेल्फ पॉलिनेशन की हेडिंग देंगे और उसकी डेफिनेशन बता देंगे उसमें। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है जिसमें एग्जांपल्स बताई हुई हैं, उसके ऊपर आप एग्जांपल्स की हेडिंग दोगे। फिर नेक्स्ट आप हेडिंग दोगे क्रॉस पॉलिनेशन की, उसकी डेफिनेशन आ जाएगी, और नेक्स्ट एग्जाम्पल की हेडिंग देकर आप उसमें एग्जाम्पल्स को कोड कर देंगे। सो यहाँ तक आपका इस पॉइंट तक जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो हाईलाइट पॉइंट्स हैं वो आपने लर्न कर लेने हैं, और लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1 जो है उसको भी अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, और डायग्राम जो है उसकी प्रैक्टिस कर लेनी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।